Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Sing it. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is, amen, a strong tower. The righteous run into it and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Sing it, church. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord. The name of the Lord. A strong tower. A strong tower. Righteous run in. Righteous run in. They are saved. They are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of the blood of the Lamb, set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Oh, worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Worthy of honor and worthy of glory, glory, worthy of praise is He. He has redeemed me. He has redeemed me by the blood of the Lamb. Set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise.
blood of the Lamb set my spirit free. Worthy of honor and worthy of glory and worthy of praise is He. Hallelujah. हालेलुया। Worthy of all praise, glory and honor. सारी महिमा स्तुति और आदर के वो योग्य है। Amen. आमेन। Believe that? क्या आप विश्वास करते Yes. हैं? Hallelujah. हालेलुया। Give Him glory and honor and praise. प्रभु को सारी महिमा सारी स्तुति और आदर दें। ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन साफ करी। फतेह की कुव्वत दे, पूरी खुशी और तेज वायदे के लिए ठहरते सभी। अपनी कुव्वत जला ली अभी, अपनी कुव्वत जला लिया बेच। क्लैप योर हैंड। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला लिया बेच। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार्ग पर चला। लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में बड़ा। अपनी कुव्वत जला ली अबे, अपनी कुव्वत जला ली अबे। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अबे। सुस्त और सर्व दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत जला ली अपनी, Put your hands together. अपनी कुव्वत जला ली अबे। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अबे। सुस्त और सब दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए हैं। बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत जला ली अबे, अपनी कुव्वत जला ली अबे। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अबे। हमको यीशु से और शिक्षा जीवन में दे, खुशी से अपने मार्ग पर चला। और लड़ाई में जय पाने की ताकत दे, अपने प्यार और ईमान में बड़ा। अपनी कुव्वत जला ली अबे, अपनी कुव्वत जला ली अबे। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अबे। Amen. Hallelujah. This song is a question for you and me. ये सवाल करता हुआ एक गीत है मेरे से और आपसे। Have you been to Jesus for cleansing power? क्या तुम यीशु मसीह के पास उसकी साफ करने वाली सामर्थ को पाने गए? And are you washed in the blood of the Lamb? क्या तुम मेमने के लहू से साफ हुए हो? Are you fully trusting in His grace this hour? क्या आज सुबह इस घड़ी तुम उसके अनुग्रह पे पूरा भरोसा कर रहे हो? Are you washed in the blood of the Lamb? क्या तुम मेमने के लहू में साफ हुए हो?
Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your robes be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright? Oh, be washed in the blood of the Lamb. Amen. Sing it. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained by sin and be washed in the blood of the Lamb. If there's a fountain flowing for the soul unclean, oh, be washed in the blood of the Lamb. Oh, are you in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will your souls be white, pure and white in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions right, and be washed in the blood of the Lamb? Oh, are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Oh yes, I'm washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments spotless, they are white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Oh yes, I'm washed in the blood, the soul cleansing blood of the Lamb. Yes, my garments spotless, are they white as snow. Yes, I'm washed in the blood of the Lamb. Jai Jai Prabhu Yeshu ki, Jai Jai Prabhu Yeshu ki. हमको बचाने आया, जगत में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हो ला 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 ला, हालेलुया में वो खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। ओ धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें न रहेगा दाग। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें न रहेगा दाग। जय जय प्रभु यीशु की।
प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाइए हालेलुया। ओ ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। ओ वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। गाइए जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ हो ला 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 ला, हालेलुया आमेन। Hallelujah. Give the Lord a good clap. ताली बजाएं यीशु के लिए। I think you want to stand and sing. शायद आप खड़े होकर गाना चाह रहे हैं। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। खड़े भी हो जाओ, गाओ भी, आनंद करो। आमेन। आमीन। Turn to your neighbor. अपने बगल वाले की तरफ मुड़कर Give them a hard step. No, no. Give them good shake. Praise the Lord. उन्हें प्रेज द लॉर्ड बोले। Amen. Hallelujah. Yes. Everybody ready? सब तैयार हैं? Hallelujah. अरे जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, गूंगों को चंगा किया यीशु ने, रोगों को चंगा किया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, और रोगियों को चंगा किया यीशु ने, रोगों को चंगा किया यीशु ने। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, लाचारों को चंगा किया यीशु ने, लाजर को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, और लाजर को जिला दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो।
मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो. Give the Lord hallelujah. Glory, hallelujah, amen. जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या, ओ माय गॉड, जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, बेटा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद. जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने लिया. जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने लिया. धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, Glory. धन्यवाद का कटोरा, Amen. Worship your name. उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद. आशीष तुझसे है बिन मांगे तूने सब कुछ दिया. आशीष तुझसे है बिन मांगे तूने सब कुछ दिया. धन्यवाद का कटोरा. Lift up your holy hands, worship him this morning. उठा के मैं ये Lift up your voice, sing. धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं देता. धन्यवाद
Namasi Karana Malaba. धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ सेवाई बारी खाइनु मेरे घर Worthy is the Lamb, worthy, worthy, worthy. Sing it again. The fire of God be on you. In the name of Jesus of Nazareth. Jesus is here. Give you glory, give you praise. Worship your holy name. Kaya Rama Mama Uga. Yera Nana Mao Shodri. This morning, Father, आज की सुबह है स्वर्गीय पिता, we are reminded this day आज के दिन हम स्मरण करते हैं that your promise is true, कि तेरा वचन, तेरा वायदा सत्य है, that where 2 or 3 will gather in my name, I am there. जहाँ पर भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, Your people have come with different needs this morning. मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु, आज तेरे लोग अलग अलग जरूरत के साथ यहाँ आए हैं। Just one touch of your holy hand is enough for us, Lord. तेरे हाथ का, उन पवित्र हाथों का एक स्पर्श हमारे लिए काफी है प्रभु। Whatever the cause might be, whether it be physical, mental, चाहे कोई भी कारण हो, शारीरिक हो प्रभु, मानसिक हो, whatever it might be, Lord, वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, whether it be in the spirit, they are down in the spirit, Lord. आत्मा में प्रभु यदि हम निराश हों, We pray, Lord Jesus, that you will minister to every heart. प्रभु हम प्रार्थना करते कि हर एक हृदयों की तू सुधि ले। Very specially, we pray for the sick, O God. बहुत खास तौर से जो बीमार हैं, हम pray- उनके लिए प्रार्थना करते हैं। We just don't want to pray, Lord, for the sake of praying. प्रभु हम आज केवल
प्रार्थना करना है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, We are praying, expecting you to do something. परंतु जब बीमारों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम तुझसे कुछ अपेक्षा भी कर रहे हैं। We are believing God this morning for Edward right now. एडवर्ड भाई के लिए आज सुबह हम तुझसे मांग रहे हैं Church, प्रभु। lift up your hands and pray for him. Right कलीसिया इस भाई के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करे। now. In the name of Jesus of Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, Your word says you command the sickness and the sickness will go. तेरा वचन कहता है तू बीमारों को हुक्म देगा और बीमारी निकल The जाएगी, prayer of faith shall heal the sick. और विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो In the जाएगा। mighty name of Jesus of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में We come against the sickness upon his body. हम भाई के शरीर के ऊपर में जो बीमारी आई है उसके लिए प्रार्थना कर रहे We हैं। break the power of hell and darkness away हम from him. अंधकार और नरक की सारी ताकत को तोड़ते उनके जीवन से, Even as we pray here, Lord, और जैसे हम यहाँ प्रार्थना करते something हैं should happen upon his body right now, this very उनके moment. शरीर में अभी कुछ होने पाए, Come out of that body this very moment. बीमारी उस शरीर से निकल जाए इसी वक्त, Be healed in Jesus' mighty name. चंगा हो जाओ यीशु के नाम में। Lord, we pray for Mrs. Topo also, Lord. मिसेस टोप्पो के लिए प्रभु हम मांग रहे In हैं, Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Let it be so today. आज ऐसा हो जाए, Lord, strength will come into our body right now. एक नई सामर्थ बल उनके अंदर आ जाए। This is the reason for you died for, Lord, इसी कारण से तूने अपनी जान दी प्रभु, that we might be made whole. ताकि हम चंगे हो Be जाएं। made whole in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। We pray for Pastor Subhash Shankar also right पास्टर now. सुभाष के लिए प्रार्थना करते In प्रभु, Jesus' name, Lord, मसीह यीशु के all नाम that में weakness will go away वो from his सारी body. दुर्बलता निकल जाए यीशु In के Jesus' नाम, mighty name. यीशु के सामर्थी Raise him नाम up from that bed. वो बिछौने से बीमारी के उठकर खड़े हो जाएं। जीसस Able नेम। to minister one more time for your एक बार glory. फिर तेरी सेवकाई करने पाए प्रभु, Bless all those हर एक जो आए हैं उन्हें आशीष दे, in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Yeah, maybe. Praise the Lord. Praise the Lord। One thing I want you all to do is एक चीज जो मैं चाहता आप सभी करें that you read your Bible more intensely nowadays. कि आप इन दिनों में अपनी बाइबल को और गंभीरता पूर्वक पढ़ें, Let's not slipshod reading here and there. केवल यहाँ वहाँ कुछ यूं ही आयतों को पढ़ के नहीं। That also helps you sometime. यद्यपि ऐसा पढ़ना भी मददगार हो जाता है कभी कभी, But intentionally with all your heart, if you seek God. लेकिन गंभीरता पूर्वक सारे दिल से यदि हम प्रभु को ढूंढेंगे, Because when we pray, we talk to God. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से बात करते हैं, But when we read the Bible, God talks to us. लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे वो वचन से बात करता है। Amen. आमीन। And in the last days, और अंत के दिनों में there's going to be a famine, एक ऐसा काल आने के बारे में भविष्यवाणी है, not for bread and water, और वो अकाल पानी के लिए या रोटी के लिए नहीं होगा, but for the word of God. परंतु वो अकाल होगा परमेश्वर के वचन के लिए। Amen. So stuff yourself with the word. इसलिए अपने आप को वचन से भर लें, This is your bread. ये आपकी रोटी है। Amen. आमीन। We sing that Sunday school song. संडे स्कूल का वो गीत हम गाते हैं, यीशु ने कहा जीवन की रोटी यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ. मैं ही हूँ। Amen. Amen. That 6th chapter of John is wonderful. यूहन्ना का वो 6वां अध्याय बहुत अच्छा है, So deep. इतना गहरा है। It talks about so close relationship with God. परमेश्वर के साथ कितने करीबी रिश्ते के बारे में बताता Then है। many disciples left him and went. जब बहुत से चेले यीशु को छोड़कर चले गए, When they heard all these things which Jesus spake. और जब उन्होंने तमाम चीजों को देखा जो यीशु मसीह ने बोला, Let us pray that God will keep us faithful to God till the end. और हम प्रार्थना करें परमेश्वर अंत तक हमें धीरजवंत बनाए रखे, विश्वास योग्य बनाए रखे। Amen. आमीन। Because that has been always been my prayer. क्योंकि हमेशा से ही मेरी यही प्रार्थना रही है। The day I got saved, और जिस दिन से मैंने उद्धार पाया था, I said to God, मैंने प्रभु से कहा, you take me through तू मुझे इस सब से लेकर जा till the end of time. समय के अंत तक, Be faithful to him. और उसके प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to the book of Ezekiel? आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे यहेजकेल नबी की किताब 22nd chapter. और उसका 22 अध्याय।
I thought of reading the whole chapter, यद्यपि मैं ये पूरे अध्याय को पढ़ने के बारे में सोच रहा था, because the verse which you're going to read will give a little bit of glimpse of what it is for that God is wanting man to pray. क्योंकि जब हम इसे पढ़ेंगे तब हम थोड़ा समझ पाएंगे कि परमेश्वर हम मनुष्यों से कैसा चाहता है कि हम प्रार्थना करें। We are reading verses 30 and 31. उसकी 30 और 31 आयत को हम पढ़ रहे हैं। And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। Therefore have I poured out mine indignation upon them. I have consumed them with fire of my wrath, that their own way have recompensed upon their heads, says the Lord. इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। To get what we have just now read, we need to read from the first verse onwards. और इस बात को जो अभी हमने पढ़ा उसको समझने के लिए से पहली आयत से ही पढ़ने से समझेगा। Israel is in a very backslidden stage. जब भविष्यवक्ता इन बातों को लिख रहा था, इज़राइल बहुत विश्वास में पिछड़ा हुआ था। Not only they had left to obey God's commandments, न केवल उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तिरस्कार किया था, but they were living an absolute violent life. परंतु बहुत ही हिंसात्मक जीवन को जी रहे थे। And God is saying to them, और परमेश्वर उनसे कह रहा था, you are shedding blood. तुम लहू को बहा रहे हो। You see, today people commit murder and think they will escape. आज लोग हत्या करके सोचते हैं कि वे बच जाएंगे। But you may escape from the law. हो सकता है कानून की नजर से भी बच जाएं। But no one can escape from the hand of God. परंतु कोई भी जन परमेश्वर के हाथ से बच नहीं पाएगा। So God is telling them, Israel is defiled. परमेश्वर इज़राइल को कह रहा है, तू अशुद्ध हो गया है। You are shedding blood. तूने हत्या की है। You have made my name to be a reproach among the heathen. तूने मेरे नाम को अन्य जातियों के बीच में तूने खराब किया है। Also, साथ ही, and he's saying that you have committed sins. और तूने ऐसी पाप किया है। Fornication. तूने अशुद्धता की है। And abomination. और ऐसा महापाप किया, घिनौना काम किया है। And even sexual immorality. और शारीरिक व्यभिचार भी। You have robbed the fatherless and the widows. तूने अनाथ और विधवाओं को लूटा है। You have extorted things from your neighbor. तूने अपने पड़ोसियों से उगाही की है। You have given false witness against people. तूने मासूम लोगों के विरुद्ध में झूठी गवाही दी है। 13th verse says, 13 आयत कहती है, you have smitten my hand and dishonorest me, which thou hast made. कहता है, इसलिए देख जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है। All these sins, people might call it small sins, big sins, whatever. ये तमाम किस्म के पाप जिनको कोई बड़ा और कोई लोग छोटा पाप कहते होंगे। But God will sin. It is not big or small. लेकिन परमेश्वर के सन्मुख पाप है, वो कोई बड़ा पाप या छोटा पाप नहीं है। Amen. आमेन। Are you here?
क्या हम साथ में हैं? Sometimes when we are starting, the train is a little slow. कभी कभी जब हम शुरुआत करते हैं तो ट्रेन धीरे से शुरू होती है, So that is the time to climb inside. और वही समय होता है कि आप भी जल्द से गाड़ी में चढ़ जाएं। But what the whole chapter is dealing with, लेकिन ये पूरा अध्याय जो जिस बात को कह रहा है, is saying with all these corrupt things, don't think you will be justified before God. ये तमाम भ्रष्ट चीजों में ये मत सोच कि प्रभु तुझे सही ठहराएगा। Especially those people who have got power. खास करके वे लोग जिनके पास ताकत और अधिकार है। Today, most of the people are living on bribes. आज बहुत से लोग घूस में और गलत धन में जिंदगी काट रहे हैं। There are some countries they do not know what bribe is. और कुछ ऐसे भी देश इसी दुनिया में पाए जाते हैं जिन देश के लोगों को घूस लेना नहीं पता है क्या चीज है। But we see how corrupt people have become. परंतु जब हम देखते हैं कि लोग कितने भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, Even what is rightfully yours, they will not give it to you. कि जो विधिवत आपका है उसको भी वो आपको देना नहीं चाहते हैं। The file is kept, the paper is there. सही फाइल वहां रखी है, कागजात वहां पर है, From the peon to this officer, लेकिन प्यून से लेकर अफसर तक there is corruption. वहां पर गड़बड़ियां हैं। Everybody's hand is open. सबके हाथ कुछ पाने के लिए खुले हैं। I don't know whether they use their own salary. मुझे नहीं पता कि क्या वे अपनी खुद की वेतन का इस्तेमाल करते या नहीं। Sometimes you think that these people, it is their right to live like that. और कुछ लोगों को लगता है इस प्रकार की जिंदगी हमारा जीना अधिकार है। There is a way that seems right to a man. मनुष्य को कुछ रास्ता ऐसा है जो सही जान पड़ता है, That we read in Proverbs 16 chapter. जिसे हम नीति वचन 16 अध्याय में पढ़ते हैं। Verse 25 says, 25 आयत कहती है, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। Meaning, अर्थात there is a way that man thinks what he's doing is right. ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को उस मार्ग को देखने से लगता है कि इस मार्ग में चलना ठीक है। For him to do wrong is nothing. उसके लिए गलत करना कुछ भी गलत नहीं है, Because he thinks he's doing right. क्योंकि उसको गलत करके भी लगता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं। The philosopher thinks his philosophy is right. दर्शन शास्त्री सोचता है कि उसका तत्व ज्ञान बड़ा है, सही है। And every man thinks that what he's doing is right. और हर एक मनुष्य सोचता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। There is a way एक मार्ग है that seems right to a man, मनुष्य को जो सही जान पड़ता है, but the end will prove that it was wrong. परंतु अंत इस बात को प्रमाणित करेगा कि वो गलत है। It is becoming more and more difficult today आज के समय में और भी अधिक कठिन होता जा रहा है to define evil बुराई की परिभाषा करना and sin, और पाप को परिभाषित करना, because spiritual blindness has come upon people. क्योंकि आत्मिक अंधापन लोगों के ऊपर आ रहा है। People will worship anything. लोग कुछ भी वस्तु की उपासना करने तैयार हैं which is not God. जो वे जानते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, And yet, तो भी they want you to agree with them. वे चाहते हैं कि आप भी उनके विचारों में सहमत हो जाएं। Spiritual blindness is very dangerous. आत्मिक अंधापन खतरनाक है। They are unable to discern what is right and what is wrong. वे सही और गलत के बीच में अंतर करने में असफल हैं। Unable to discern what is good and what is evil. सही क्या और गलत क्या दोनों के बीच वो अंतर करने में अयोग्य हैं। People will come out with different arguments लोग अपनी बातों को लेकर नए नए तर्क लेकर आते हैं and justify their evil acts. अपने गलत कृत्यों को सही ठहराने के लिए। Nowadays, one very common thing has become, आज एक बहुत सामान्य चीज हो गई है, it has hurt my feelings मेरी भावना को ठेस लगी and I'm hurt. मुझे चोट लगी। God wants to hurt us प्रभु हमें चोट देना चाहता है so that He might heal us afterwards. ताकि वो हमें बाद में चंगा करे। Amen. आमेन। Hurt चोट for what? किस चीज के लिए? What is the hurt, you know? आप जानते हो चोट क्या है? Conviction is the hurt. वो जो कायलपन है वही चोट है।
because they are living in darkness, क्योंकि जो अंधकार में रह रहा है, they are doing the works of darkness, वो अंधकार के काम कर रहा है, and when light comes, और जब ज्योति आती है they don't like it. उन्हें वो पसंद नहीं आता है। Jesus said like this, यीशु ने इस प्रकार से कहा, this is the condemnation, दोष ये है, दंड की ये है that the light has come into this world, कि ज्योति इस जगत में आया, men love darkness, परंतु जगत के मनुष्यों ने अंधकार को प्रिय जाना, they love it. उनको अंधकार अच्छा लगा। The world looks very good, दुनिया अच्छी लगती है, the dance is so good, उनका नाच और नृत्य अच्छा लगता है। shame on you, those of you शर्म की बात है knowing the truth, जो ऐसे लोग सत्य को जानकर, those people who don't know the truth, for them it is an excuse. जो सत्य को नहीं जानकर ये सब कर रहे हैं, प्रभु उन्हें माफ भी करता है। But those who know परंतु जो सत्य जानकर and still go on and doing it, तो भी आगे बढ़कर उन कार्यों को करते हैं, remember, याद रखें judgment is waiting. न्याय आने वाला है। Amen. God is a just God. परमेश्वर क्योंकि धर्मी परमेश्वर है। One thing is certain एक बात तो तय है and sure, और पक्की बात है the judgment day of the Lord is coming for everyone, कि प्रभु का न्याय का दिन सभी के लिए आने वाला है, and every man will be judged और हर एक मनुष्य का न्याय किया जाएगा, not by high court and supreme court, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, but the judge of all. परंतु जो न्यायों के ऊपर जो न्यायी बैठा है। Amen. Even today judgments are turned. आजकल के समय में दुनिया में न्याय को भी बिगाड़ा जाता है। Money plays the game. पैसा वहां भी काम करते दिखता है। They must know one thing, एक बात को उन्हें जानना whether you are चाहिए, a judge or anybody or a ruler, आप चाहे न्यायी हो, कितने बड़े शासक हो, one day एक दिन that whole reel will be shown to the whole world of your life. आपके जीवन का किया गया सारा कार्य का वो रील वहां पर पूरी दुनिया के सामने दिखाया God जाएगा। has all records, परमेश्वर के पास एक एक कार्य का लिखा है, all the secret things, तमाम गुप्त में किए गए the काम, planning, the kidnapping, गुप्त में किए गए योजना और अपहरण, and they think that they'll escape. उनको लगता हो बच जाएंगे। Remember one thing, एक बात को याद रखें, God's day of judgment is coming, परमेश्वर के न्याय का दिन आने वाला है, and none will escape. कोई भी बचेगा नहीं। Amen. Amen. With the kings of or rulers, चाहे राजा हो चाहे शासक हो, and that judgment और ये न्याय will be with evidence. वो प्रमाण के साथ होगा, That judgment will be with proof वो साक्ष्य के साथ होगा that has been done. कि ये कार्य किए गए हैं। Every man's work हर एक मनुष्य के काम will be judged on that day. उस दिन उसका न्याय होगा। Read history. इतिहास को खोल कर पढ़ें, Hello. You read history. इतिहास की किताब पढ़ें, You'll find the end of wicked men. आप दुष्ट मनुष्य के न्याय को पढ़ते हैं, You'll find the end of wicked rulers. आप दुष्ट शासकों के अंत को पढ़ते हैं, What was their end? उनका अंत क्या हुआ। If they're not punished here, they will be punished there. यदि इस दुनिया में सजा पाने से बच भी गए, वहां पर सजा मिलेगी, Judge of all. क्योंकि न्यायियों के ऊपर जो न्यायी बैठा है। Amen. आमेन। God gives us warning before judgment. परमेश्वर न्याय के पहले चेतावनी देता है। Amen. If we were rulers, we would have finished the world by, I don't know when. If God had given us some power. यदि हम न्यायी होते और प्रभु ने हमें कुछ ताकत दी होती, सामर्थ, तो हम शायद लोगों को नष्ट कर देते। कोई नहीं बचता। कोई नहीं बचता। God is long suffering. परमेश्वर लेकिन बहुत धीरज धरता है। He's waiting for man to change. वो मनुष्य के लिए रुकता है कि वो बदल जाए। Even the rulers should read history. शासक जो है शासन कर रहे, उन्हें भी इतिहास पढ़ना चाहिए। All the craft and all the cunningness तमाम जो चतुराई और चालाकी है and corruption, और भ्रष्टाचार है, removing people, लोगों को यहाँ वहां हटा रहे हैं, killing people किसी की हत्या करवा by रहे हैं, accident.
दुर्घटना से मार रहे or हैं did something else, या कुछ और करके and they think that they will not escape. उनको लगता है कि हम बच गए। Remember one thing, एक बात को याद रखिए, God's records are all true. परमेश्वर के सारे लेखा वो बिल्कुल सही है। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Everybody is taking bribe. हर एक मनुष्य घूस ले रहा है। The police and the traffic police is also taking. ट्रैफिक पुलिस का भी हम सुनते कि घूस ले रहा है। Nowadays they don't take it because where the CCTV camera they won't take this. आजकल उससे भी लोग सीसीटीवी से बचते हैं। Some are camera in the wall in the pen also. कुछ लोग के कलम में ही कैमरा लगा हुआ है, So they said give it to that pan teller. तो पान ठेले वाले को दे देने बोलते हैं So that is a different way to get it. और दूसरे तरीके से वो ले लेते हैं। They are harming their own self. ऐसा करके लोग अपने स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। First put money, then talk. पहले पैसा रखो, उसके बाद बात करें। That has become the trend today. वर्तमान दुनिया की यही रिवाज बन गई है I only pray that none of us will do that. और मैं यही प्रार्थना करता कि हमारे में से कोई इस काम को ना करे। Be very honest in your work. अपने काम में ईमानदार रहें। Amen. आमेन। God will reward you. परमेश्वर तुझे प्रतिफल उसका देगा। Amen. आमेन। A big industrialist has died. एक बहुत बड़े उद्योगपति की मृत्यु हो गई, Tata. Ratan Tata. रतन टाटा की। He's done a lot for the country. इस आदमी ने देश के लोगों के लिए काफी कुछ किया And some lecture he gave one time. और एक समय उसने कुछ भाषण देते हुए बोला, Don't pride over your success. अपनी सफलता के ऊपर में घमंड मत करो, Don't pride over your money. अपने पैसे के ऊपर घमंड मत करो, Don't pride over your kingdom. अपने साम्राज्य के ऊपर घमंड मत करो। But only thing you can be proud of, एक ही चीज जिसके लिए आप घमंड कर सकते that हो you did help somebody in their need. कि आपने किसी आदमी की उसकी जरूरत को जानकर उसकी मदद की। Amen. There are noble people. ऐसे अच्छे लोग दुनिया में भी पाए जाते हैं। Remember friends, याद रखे, honest and a straight life. ईमानदार और सीधा जीवन। Amen. आमेन। Before God परमेश्वर के सन्मुख and before man. और मनुष्यों के सन्मुख। Amen. आमेन। Man will give you respect. मनुष्य आपको आदर देगा। Some are being saluted just because of their money. कुछ इसीलिए सलामी पा रहे हैं उनके धन के कारण, And behind their back, लेकिन उनके पीठ के पीछे what people say, लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं corrupt fella. कि एक गलत आदमी है। Listen friends, सुनिए दोस्तों, God has called us to live uprightly. परमेश्वर ने मुझको और आपको एक सीधा जीवन जीने बुलाया है। Amen. आमेन। History tells us इतिहास हमें बताती है of the flood that destroyed during Noah's days. उस बाढ़ के विषय में जो नूह के दिन में आया था। They ate, they drank, they danced. लोग खाते पीते थे, नाचते गाते थे, They gave in marriage. शादी ब्याह होता था, Everybody was happy. सब लोग खुश थे, Living a sinful life. लेकिन पाप से भरा हुआ जिंदगी जी रहे थे। Noah preached to them hundreds of years. नूह सैकड़ों सालों प्रचार किया उन लोगों के आगे, Turn from your evil ways or you get destroyed. अपने दुष्ट मार्गों से फिर जाओ अन्यथा नाश हो जाओगे। They did not listen to him. लेकिन उन लोगों ने नूह के वचन को नहीं सुना। And Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of coming of the Son of Man. यीशु मसीह ने आकर कहा कि जिस प्रकार नूह के दिन में हुआ था, वैसे ही अंत के दिन में जब मनुष्य के पुत्र के आने का समय होगा तो भी ऐसा ही होगा। There was a sign for them to know. उनके सामने चिन्ह था जानने के A लिए great ark was being built for nothing. कि एक बहुत बड़ा जहाज बन रहा है और यूं ही बिना अकारण नहीं बन There रहा is है। no water around. चारों तरफ पानी भी नहीं था उस जहाज के। They had not seen rain. उन्होंने उन दिनों तक बारिश को गिरते देखा नहीं था। They mocked him. उन्होंने नूह का मजाक उड़ाया। This is just trying to make us afraid. ये हमको डराने के लिए ऐसा कुछ बना रहा है। Listen, my friends. सुनिए दोस्तों, A rebuke of a friend is better than the kisses of an enemy. एक दोस्त की डांट एक दुश्मन के चुंबन से अच्छा है लिखा है।
Amen. आमेन। When I rebuke, take it. जब कोई डांटता है उसे ले लें। Fear of the Lord परमेश्वर का डर is the beginning of wisdom. बुद्धि का आरंभ है। But fools परंतु मूर्ख व्यक्ति do not want to take instruction. वो निर्देश लेना नहीं चाहता। For them, instruction is insult. उनके लिए निर्देश अपमान है। Because they think they should not be taught. क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। But a wise man परंतु बुद्धिमान मनुष्य will receive instruction. वो निर्देश को लेता है। Because that rebuke will someday bring forth good fruit. क्योंकि वो डांट किसी दिन अच्छा फल ले आती है। If God is rebuking us, यदि परमेश्वर हमें डांट रहा है, telling us to change our ways, हमें अपने मार्गों से मुड़ने बोल रहा है, because He's wanting to bless us. वो इसलिए कि वो हमें आशीष देना चाहता He है। did not make us to destroy us. उसने हमें बनाया इसलिए नहीं कि हमें नाश करे। It is the sin that will destroy man. परंतु वो मनुष्य के अंदर पाप जो है वो मनुष्य को नाश कर रहा It's है। not God. परमेश्वर नहीं कर रहा The है। wages of sin. पाप की जो मजदूरी है, Jesus has come to give us life. यीशु तो जीवन देने आया। But if we continue to the wrong path, परंतु यदि हम गलत मार्ग में चलते रहे, we are heading in for hellfire. हम नरक की आग की दिशा में बढ़ रहे हैं। Amen. आमीन। Today, आज के समय we need to check our own lives. हमें अपने जीवन को जांचने की Where जरूरत do I है। stand today? मैं आज कहाँ खड़ा हूँ? Maybe I stand well with you, क्या मैं आपके साथ शायद सही खड़ा हूँ? but what about God thinks लेकिन about me? परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच He रखता knows the है? very secret of my वो heart. मेरे दिल की हर एक गुप्त बात को जानता है। He knows every secret of my thought. मेरे विचार के हर एक गुप्त बात को जानता So है। come before Him and say, उसके सामने आ जाए और बोले, Here I am, Lord. प्रभु मैं यहाँ हूँ, Search me and try me. मुझे तू जांच और जान ले। Hallelujah. Hallelujah. And do something new in my और life. मेरे जीवन में कुछ नया कर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। These people refused to listen. परंतु नूह के समय के लोगों ने उसकी बात सुनने से इनकार किया। And suddenly it came. और एकाएक वो दिन आ गया। Amen. They had never seen clouds. उन्होंने बादल को आसमान में आते देखा What नहीं। is this? ये क्या आ रहा है? Boom. और बादल की गर्जन। And suddenly from ground also, और जमीन के भी सोते फूट निकले। everywhere popping up. हर जगह से पानी की धार निकल कर बाहर आ रही है। God shut the door. परमेश्वर ने तब उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया। Listen friends, सुनिए दोस्त, as long as the door of salvation is open, जब तक उद्धार बचने का रास्ता खुला हुआ है, take opportunity. उसमें प्रवेश कर ले मौका लेकर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Because someday क्योंकि किसी दिन the door is going to close. वो दरवाजा उद्धार का भी बंद हो जाएगा। And God said, और परमेश्वर कहता the है, door which I open no man can close. जिस द्वार को मैं खोलता हूँ उसे कोई मनुष्य बंद नहीं And कर the सकता, door which I close no man can और open. जिस द्वार को मैं बंद करता हूँ उसे कोई मनुष्य खोल नहीं सकता। Flood took them all away. बाढ़ ने उन्हें मिटा डाला, उन लोगों को। Only 8 were saved. केवल 8 लोग बच गए। Same way, उसी रीति से when Sodom and Gomorrah, जब सोदोम और गोमोरा के ऊपर they were living homosexual lives. वे समलैंगिकता का जीवन जी रहे थे, Sodom means that only. और सोदोम का अर्थ ही वो है, उसी से निकला है। Not only they, ना केवल वो, 5 more cities around them. उसके आसपास 5 और नगर भी थे। And some of the reasons, और कुछ कारण, everything they had. हर चीज जो उनके पास, सब कुछ था। Food and खाने के लिए बहुत था, best of things. सब बेहतरीन चीज All God has given. परमेश्वर ने जो आशीषें दी थी। Sometimes, कभी कभी thank God for difficult times. प्रभु का धन्यवाद दे कठिन समय के लिए, Thank God for sorrow. दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, Sorrow cleanses our heart. क्योंकि दुख हमारे दिल को साफ करता है। Amen. Amen. When sometimes the stomach is empty, कभी कभी जब पेट खाली when the रहता है, pockets are empty, जेब खाली रहता है, we call upon God. हम परमेश्वर को पुकारते हैं। Amen. Amen. But everything is full, we forget लेकिन जब Him. सब कुछ भरा हो तो हम भूल जाते हैं। Don't forget Him. प्रभु को ना भूलें। Sodom and Gomorrah were living absolute licentious lives. सोदोम और गोमोरा के लोग अत्यधिक पापमय जीवन जी रहे थे। So much so that any visitor coming to the city, they won't want to molest them. कहा जाता है कि कोई बाहरी मनुष्य भी उनके नगर आ जाए तो वे उस आदमी को पकड़कर उसके साथ में व्यभिचार करते थे।
And that was a trend, everybody knew that. और ये एक रिवाज सी बन गई थी, इस नगर में सबको पता था। One day, एक दिन 2 angels come 2 स्वर्गदूत आए and told Lot, come out. और लूत से कहा, इस नगर से बाहर चल। They wanted to molest the angels. वो तो स्वर्गदूतों के साथ भी गलत काम करना चाहते थे। So the angel said to Lot, go and tell your sons-in-laws. स्वर्गदूतों ने जाकर अपने उन नूह से कहा, अपने जो दामादों को तू बोल दे। लूत माफ करे, दामादों को बोल दे। And the damads made fool of him. और जो उसके दामाद थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। अरे ऐसा क्या? Judgment. न्याय आएगा। Same thing we are doing. वही हम कर रहे हैं। Suddenly, एकाएक fire fell from heaven. आसमान से आग उस नगर के ऊपर गिरने लगी। Except for Lot and his 2 daughters. लूत उसकी 2 लड़कियों के अलावा Everyone died. सब उस नगर के लोग मर गए। Till today, आज के दिन तक near the Dead Sea, that's the spot. मृत सागर के पास में एक ऐसा जगह है। They say that whole place was like that. कहते हैं वो पूरी जगह ही वैसी थी। It stands a witness of God's judgment. परमेश्वर के न्याय का गवाही के रूप में वो जगह खड़ा है। Only sulfur is there, sulfur. वहां पर गंधक मिलती है अभी भी। The bricks are burnt ईंट दबे हुए जले हुए हैं with consuming fire. ऐसी भीषण आग का निशानी अभी भी है। Oh, you say that happened that time? कोई कहता अरे वो उस समय हुआ। Another city called Pompeii एक और शहर था, पंपाय नाम का शहर, during Roman Empire. रोमी साम्राज्य के दौरान। You must have read about it. आप इसके इतिहास में पढ़े हैं। Pompeii was once a prosperous Roman city एक समय वो संपन्न रोमी नगर था in south of Italy. इटली के दक्षिणी भाग में। It was destroyed when a nearby volcano erupted. वो नाश हुआ था जब करीब के एक पहाड़ से ज्वालामुखी फूटने लगी। That volcano was silent all these years. वो पहाड़ की ज्वालामुखी शांत हो चुकी थी, सालों से उसमें कोई हलचल नहीं थी। No warning was given कोई भी चेतावनी भी लोगों को मिलने का समय नहीं मिला, so that people would be able to run away. ताकि लोग दौड़कर अपनी जान बचा लेते। This city also, ये नगर भी now they are finding it was buried 19 feet with ash. और अब उन्होंने पा रहे हैं 19 फीट राख के नीचे दबा हुआ वो नगर। This building ये इमारत is about 15 feet. ये 15 फीट करीब है। 19 feet. 19 फीट। Volcano just buried the whole city. उस ज्वालामुखी ने नगर को पूरा दबा दिया। You will say very cruel of God. आप कहेंगे क्या परमेश्वर क्रूर है? But today लेकिन आज के दिन they are finding their paintings on the walls of the ruins. उन खंडरों के अंदर से, जो उनके घरों के अंदर से जो चित्रकारी निकल के आ रही है, It was painted in walls of public places. और जहां पर आम जनता मिलते जुलते थे, ऐसे जगह में दीवारों में पेंट किए गए हैं। And all are obscene scenes. और वो चित्र सारे अश्लील हैं। No one is wearing clothes. कोई भी में वस्त्र पहने हुए नहीं उन चित्रों में। And they say the people in Pompeii were very tall and big. और लोग कहते हैं कि पंपाय के लोग बहुत ऊंचे पूरे लोग थे। They are finding brothels and prostitutions with all these paintings over there. और तमाम जगह में वो वेश्यावृत्ति के स्थान और ऐसे ऐसे चित्रकारियां नगर में भरी हुई है। And they have found the bodies of people died with their children. और लोग जिनके The हाथ में skeletons. बच्चे हैं, ढांचा दोनों का, हड्डियों का ढांचा मिल रहा है। Soldiers died standing on guard. सैनिक अपने संतरी खड़ा रहा, अपने जगह से हिलने नहीं पाया, उसी दशा में मर गया। Thousands died, about 20,000. करीब 20,000 लोग उस ज्वालामुखी से मर गए थे। Sin पाप will be judged. का न्याय होगा। Amen. आमीन। So don't give in to
any kind of evil, किसी प्रकार की बुराई के सामने हार नहीं मानना है। murder, हत्या, adultery, व्यभिचार, idolatry, मूर्ति पूजा, bribery, घूस लेना, theft, चोरी, deceit, धोखा fraud, और किसी के साथ फ्रॉड करना, scamming, किसी को स्कैम करना, kidnapping, अपहरण करना, oppressing the fatherless and the widows, अनाथ और विधवाओं को प्रताड़ित करना, stealing people's property, लोगों की संपत्तियों को चोरी करना, all these things तमाम चीजें will be judged by God. परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा। Before God will judge the world, इससे पहले कि परमेश्वर जगत का न्याय करे, He takes away His people. परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Before He could bring the flood, इससे पहले कि उसने बाढ़ को भेजा, Noah was out. नूह को उसने बाहर कर दिया जहाज से। Amen. आमेन। Even though Lot was living in such a sinful city, यद्यपि लूत ऐसे भयंकर पाप में शहर में रह रहा the था, scripture says his soul was vexed day and night वचन कहती है उसका मन प्रतिदिन खेदित होता था for the things that he was hearing, उन चीजों को लेकर जो नगर की चर्चाएं सुनता था, what was happening in that city. उस नगर में जो हो रहा था। But till Lot was there, लेकिन जब तक वो एक आदमी लूत वहां था, God could not judge. परमेश्वर ने सोदोम और गोमोरा पे न्याय नहीं किया। Amen. Amen. You read one verse. एक और आयत, एक आयत पढ़ेंगे, Genesis 19 chapter. उत्पत्ति उसका 19 अध्याय। This is the angel that's saying to Lot, यहाँ पर स्वर्गदूत लूत से कह रहा है, verse 22, 22 आयत में, haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou come hither. फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न करूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। Amen. आमीन। As long as you are there, जब तक तू यहां पर रहेगा, I can't do anything. तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। My message this morning, आज सुबह जो मैं संदेश आपसे कहना चाहता हूं, you can make the difference. आप नगर में अंतर ला सकते हैं। Hallelujah. You can make the difference. आप अंतर ला सकते You हैं। say, oh Lord, I am one man. प्रभु से आप कहते मैं तो अकेला आदमी, Yes, because of that one man, that office is not destroyed. एक आदमी के कारण वो आपका कार्यालय बचा हुआ है। Amen. आमेन। You are the one who makes the difference. आप एक के कारण वहां पर अंतर आया हुआ है। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। People don't realize that they are wanting to remove the very thing that is preserving them from God's judgment. लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उन्हीं चीज को हटाना चाह रहे हैं जो चीज उन्हें परमेश्वर के न्याय से अब तक बचा के रखी है। Amen. Listen again. एक बार फिर सुनिए। People don't realize लोगों को ये एहसास नहीं है, they are wanting to remove the very thing that is preserving them from God's judgment. वे उसी लोगों को हटाना चाहते हैं जो लोग के कारण उनके खुद के ऊपर परमेश्वर का न्याय रुका हुआ है। Amen. Why is no judgment coming on this क्यों last day? न्याय उन पापी लोगों के ऊपर नहीं आ रहा? You are there. क्योंकि आप वहां पर हैं। Hallelujah. Jesus said, यीशु ने कहा, you are the salt of this earth. तुम इस जगत के नमक हो। And salt is put there to preserve. और नमक वहां पर किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए रहता है। Some qualities of the salt, नमक की कुछ गुण हैं, it preserves, चीजों को खराब होने से रोकता है, it gives you taste, स्वाद देता है, it is very common, और बहुत ही सामान्य सा मिलने वाली वस्तु है, it is very cheap. और बहुत सस्ता भी मिल जाता है। And a believer is there. और विश्वासी वही सब A कुछ, small believer, एक छोटा सा भी विश्वास because of you, आपके कारण the earth is preserved. दुनिया बची हुई है। Hallelujah. Amen. आमेन। Salt. नमक, You are the salt of this earth. आप Jesus did not जगत say for के, nothing. आप यूं ही नहीं हैं, आप जगत के नमक हैं। Jesus did not say just like this. यीशु ने यूं ही इस बात को नहीं बोला, He knew there is something in you. उसको मालूम था आपके Hallelujah. अंदर कुछ ऐसा तत्व है। Hallelujah. हालेलुया। Christ in you, यीशु मसीह जो आपके भीतर है, the hope of glory. जो आशा है महिमा की।
Then again Jesus said, फिर यीशु ने कहा, you are the lights of the world. तुम इस जगत की ज्योति हो, Shine. चमको। Amen. आमेन। You are the one who dispels darkness. तुम ही हो जो अंधकार को दूर हटाते हो, You will make the difference. और आप ही अंतर लाते हो। Amen. आमेन। The church is sustained. कलीसिया बची हुई है, Is the sustaining factor, वही बचाने वाली चीज है, preserving factor. वही संभालने वाली वस्तु है। Who? कौन? The church. कलीसिया। They don't realize लोग इस बात को नहीं एहसास करते if they get rid of the church, कि यदि इस दुनिया से कलीसिया को हटा दिया जाए, you are stepping on a landmine. तो आप एक Landmine. लैंडमाइन, जिसके जो बम के ऊपर पांव रख रहे हैं, Once you step on it, और एक बार जब आप उसके ऊपर पांव रखते हैं, it blow you up. वो उस आदमी को बर्बाद कर देती है। Amen. Are you here? आप समझ रहे हैं? Where are the world empires? कहाँ गए विश्व के बड़े बड़े सम्राट? Babylonian Empire बाबुल का बहुत बड़ा सम्राट, reigns till India. भारत तक जिसका राज्य फैला हुआ था। Persian Empire, पारसी राजा कहाँ गए? Grecian Empire, यूनान के राजा कहाँ गए? Roman Empire. रोम का सम्राट कहाँ रहा? Rome rules the world. रोम जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था। They tried to destroy the body of Christ, the church. उन्होंने यीशु मसीह की देह कलीसिया को नाश करने का प्रयास किया था। Rome's kingdom is not there. आज रोम का साम्राज्य दुनिया से मिट चुका है, But the church, लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया, hallelujah, हालेलुया, amen, आमेन, remains. अभी भी बना हुआ है। Amen. Amen. The very thing they wanted to destroy, जो चीज वो नाश करना चाहते थे, it remained and the kingdom went. वो ही चीज रह गई और उनका खुद का राज्य मिट गया। You are the one who makes the difference. आप ही लोग हैं जो दुनिया में अंतर लाते हो। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Don't underestimate yourself. अपने आप को छोटा ना जाने। God's desire परमेश्वर की मर्जी ये है is to save everyone. कि हर एक को बचाए। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम साथ Amen. में चल रहे हैं? God's desire is to save everyone, परमेश्वर की इच्छा है कि वो सबको बचाए, regardless of what the religion or what the creed or tribe. चाहे उसका जो भी धर्म, जो भी पंथ, जो भी जाति का वो कहलाता हो। Jesus came for everyone. यीशु मसीह इस जगत के लोगों के लिए आया है। Remember, याद रखिए। after death there is no religion. एक आदमी के मरने के बाद उस आदमी का कोई धर्म नहीं होता। Amen. आमेन। They may cremate him, they may bury him, or he may explode in an act, in a war. मरी हुई लाश को वो चाहे जला दे, चाहे गड़ा दे, चाहे उसको जो भी कर दे, Maybe in a shipwreck you drown. चाहे वो पानी में के जहाज से टूटकर गिर कर डूब कर मर गया हो। God is interested in saving man's soul. परमेश्वर की रुचि इसमें है कि वो मनुष्य का जान बचाए। Sin came by man. पाप मनुष्य के द्वारा आया। Anything that has to happen in this world has to happen through man. इस दुनिया में कुछ भी यदि होना है तो मनुष्यों के द्वारा ही होना है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Even God had to become man to do something for man. परमेश्वर को मनुष्यों के लिए कुछ करने के लिए खुद को मनुष्य बनाना पड़ा। Sin came through man. क्योंकि पाप मनुष्य के द्वारा आया था, परमेश्वर के द्वारा नहीं। And death came through man. और मृत्यु भी मनुष्य के द्वारा आई थी। So someone has to become man to bring us out of this. किसी को मनुष्य को ही मनुष्य को पाप से बचाने के लिए मनुष्य बनना था। Now how will you understand this one? अब आप इसे कैसे समझ पाएंगे? Nowadays you find JCB everywhere. आज हर जगह JCB. आप हर जगह देखते हैं। And you find out the name. और आप उस नाम को यदि पढ़ें। How many of you know the name of JCB? कितने लोग उस JCB के नाम को जानते हैं? Ask Mr. Burgess, he will tell you. मिस्टर बर्जेस से पूछें, वो आपको बताएंगे। That's the name of a man. वो एक आदमी का नाम है। Some Jerry, something like that. I don't know. Google it, not now, afterwards. घर पहुंचने के बाद आप उसे देखें।
everywhere. हर जगह उसका नाम है। Suppose मान लीजिए there's a big ant hill, एक बड़ा चींटियों का एक बाम्बी है, not small one, big one, छोटा नहीं बड़ा वाला जो बनाते हैं, and ants are very busy working up and down. और चींटियां यहाँ वहाँ दौड़ रही, चल रही, कुछ कर रही हैं। Now the people want to make this into a playground. और लोग कुछ आए और उनको ये पूरा जगह समतल खेलने की जगह बनानी थी। So that thing has to go. तो वो चींटियों ने जो खूबसूरत जो बाम्बी बनाए थे उसको भी उखड़ना था। So if the driver of that JCB comes and shouts there, come on, get out, the big machine is coming. और जेसीबी का ड्राइवर वहां पर आता है और जोर जोर से चिल्लाकर उन चींटियों को बोलता है, हट जाओ, वो गाड़ी आकर तुम्हें नाश कर देगी। He's going to wipe this out. ये सब कुछ मिट जाएगा। Run, run. भागो यहाँ से भागो। He's shouting. वो चिल्ला रहा है, Nothing happens. लेकिन चींटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। The only way he can communicate, एक ही तरीका है जिसके द्वारा वो इन चींटियों तक संपर्क कर सकता if है। he became an ant, यदि वो स्वयं भी इन्हीं में से, इन चींटियों में से एक होता, then he could tell them. तब वो दूसरी चींटियों को बोलता। That's what Jesus did. यीशु मसीह ने यही किया है। He became man वो मनुष्य बना to save man. मनुष्य को बचाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। If death came by man, यदि मौत मनुष्यों के द्वारा आई, life came through Jesus Christ. जीवन यीशु मसीह के द्वारा आया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, God's ordinances don't change. परमेश्वर के नियम बदलते नहीं। If he once, I was always thinking, why didn't God hit Eve's hand when she took the apple? और मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर ने जब हवा ने उस फल को तोड़ा तो प्रभु ने उसके हाथ को ही मार कर रोका क्यों नहीं? कुछ नहीं, अपन लोग ठीक से रहते। शायद Why? हम सब लोग सही रहते। क्यों? You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he had already spoken. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, I give you the authority, मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर अधिकार देता हूँ dominion और पूरी सामर्थ्य देता हूँ over everything on this earth. इस पृथ्वी में पाई जाने वाली हर एक वस्तुओं के ऊपर। Rule. तुम इस पृथ्वी के ऊपर राज करो। Now once he has given his word, जब एक बार उसने अपने वचन को दे दिया था, he will not take it back. वो उस वचन को वापस नहीं ले सकता है। Amen. आमीन। That is why इसलिए God did not interfere. परमेश्वर ने वहां पर अपने आप को हस्तक्षेप करने से रोका। Amen. आमीन। Listen, सुनिए, his ordinances remain. परमेश्वर के अधिनियम बने रहते हैं। Amen. आमीन। Husband is the head of the house. पति घर का मुखिया है। That is God's ordinance. God. परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। But he's non-educated. I am PhD. लेकिन He वो- is only 5th class. वो तो पढ़ा भी नहीं है, 5वीं क्लास पढ़ा है, मैं तो PhD कर ली हूं। Still, he is the head of the house. उसके बावजूद भी वही घर का मुखिया है। Amen. आमीन। If you acknowledge that, you will live in peace. यदि आप इस बात को अंगीकार करेंगे, आप शांति पूर्वक आनंद से रहेंगे। Now he has to be not to become a dabang. और है। पुरुष को चाहिए कि वो एक मददगार रहे, ना कि कोई दबंग जैसे रहे। Wife is what? पत्नी क्या है? Help meet. वो एक सहायक है। Now if you, I should not go into this one now. ये विषय संवेदनशील है, Ignite some problem. फिर कुछ समस्या सुलझ जाती है। Help meet, मदद के लिए बनाए गए, not supervisor. लेकिन सुपरवाइजर नहीं बनाए गए। Not director, chairman. डायरेक्टर या अध्यक्ष नहीं बनाए गए। If we live like that, यदि हम जैसा प्रभु कहता वैसे हम जिए, life will run smoothly. जीवन काफी आरामदायक रहता है। Amen. आमीन। This nose cannot say you placed me in the wrong place. नाक ये नहीं बोल सकता है कि मेरे को गलत जगह रखा गया। I do all the smelling, so put me up here. मैं सब चीज को
चारों तरफ की खुशबू लेता हूं, इसलिए मेरे को सबसे ऊपर रहना है। If that is the case, then big problem. यदि नाक ऊपर कहीं रहे तो फिर बड़ी समस्या। They're taking every morsel of food like this. हर बार जब निवाला खाने के पहले वहां खुशबू लेकर फिर मुंह में जाएगा। Amen. Not everything. I want to be big. हर चीज में मैं बड़ा बनना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। If eye says I want to be the biggest, यदि आंख ये कहे कि मेरा आकार सबसे बड़ा होना चाहिए, suppose we have big eyes like this. मान लीजिए सबकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो, How will look? सोच देख ली कैसे दिखेंगे। Everything God has placed in His place. परमेश्वर ने उचित तरीके से सबको उचित जगह में रखा है। Amen. आमीन। I don't know what is the use of this, मैं नहीं जानता इस भाव का क्या काम है, but it is doing something. लेकिन फिर भी कुछ करता है। At least some beauty. शायद कुछ सुंदरता ही बढ़ा रहा हो। Sometimes it is low, so we make it high. कभी कभी नीचे को ऊपर करते लोग। One day I was coming in train and I saw one man looking very funny. एक दिन मैं ट्रेन में बैठा था, सामने जो आदमी था बहुत अजीब दिख रहा था। Then I realized कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ, he not only shaved his head, he shaved his eyebrows also. वो आदमी बाल तो उसके सिर में उसने मोड़ दिया था, परंतु साथ ही साथ आँख की जो भाव थी उसको भी मोड़ दिया, He's looking like an alien. और उसे पराये ग्रह का आदमी दिख रहा था। Whatever God has done, He's placed it in the right place. परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है उसके उचित जगह में रखा है। Amen. आमीन। His ordinances don't change. परमेश्वर के अधिनियम बदलते नहीं है। God has given man dominion and authority to advance His kingdom on this earth. परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार और ताकत दिया इस पृथ्वी पर कि उसके राज्य को हम बढ़ाएं। All right? आमीन। Just I'm coming to a close. मैं समाप्ति में आ रहा हूँ। Romans 8th chapter, रोमी 8 अध्याय 19th verse. 19 आयत। Romans 8:19. रोमी 8:19। For the earnest expectation of the creation waiteth for the manifestations of the sons of God. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। Amen. आमीन। What do you understand? क्या आप समझे? You are the sons of God. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। The earth is waiting for you, सृष्टि इंतजार कर रही है, बाट जो रही है for you to manifest God's power. कि परमेश्वर की सामर्थ को आप आएं और प्रकट करें। Are you understanding? क्या आप समझ पाए? Amen. आमीन। For the earnest expectation. आशा भरी दृष्टि से सृष्टि देख रहा है। Look at our animals are also suffering. देखिए जानवर लोग का दुख भी देखिए। कोई नहीं हटा रहा, लंगड़ा हो गया हो. कोई लंगड़ा हो गया है, Solid bull but he's lame अच्छा तगड़ा कोई सांड है लेकिन वो पांव से लंगड़ा है, because Raj went over his leg. क्योंकि कोई उसके गाड़ी चला दिया उसके ऊपर, पांव के ऊपर से। All the dogs are thin, roaming here and there. कुत्ते दुबले पतले, Someone gives, they eat. कोई कुछ उनको खाने देगा तब वो खाएंगे। God is concerned about His creation. परमेश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि को लेकर फिक्रमंद है। Amen. About man मनुष्य को लेकर भी and about everything. और हर एक अपनी सृष्टि को लेकर भी। Even your garden, आपके बगीचे को भी उसको फिक्र है। He's given us flowers. परमेश्वर ने खूबसूरत फूलों को दिया है। He's given us trees. प्रभु ने अच्छे पेड़ दिए हैं, Make it nice. उसको अच्छे से रखें। Amen. आमीन। But more than that, परंतु इससे बढ़कर they are waiting for God's people to manifest God's glory. वे परमेश्वर के लोग पुत्रों की बाट जो रहे हैं प्रकट होने के लिए। Amen. आमीन। You are the one आप वो लोग हैं should make the difference. जो इस जगत में अंतर को ला सकते हैं। Amen. Amen. You will say how? आप कहेंगे कैसे? Look at Moses. मूसा की तरफ देखो, He said, Lord, now I can't speak also. वो कहता प्रभु अब मैं बात भी नहीं Get कर। up, Moses, go, tell Pharaoh. मूसा जा, उठ
और फिरौन राजा के सामने बोल। I have heard the cry of my people. मैंने अपने लोगों इस्राएलियों की पुकार रोने को सुना। I have seen their tears. मैंने उनके आंसू को देखा। I have come down to deliver them. मैं अब नीचे उतर आया हूं उनको छुटकारा देने। But I need a man. परंतु मुझको एक आदमी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And you are the man. और मूसा तू ही वो व्यक्ति है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. You are the one. तू ही आप ही वो लोग Go हैं। to Pharaoh. फिरौन के सामने जा। Tell him. उससे बोलने Let my वाले people go. मेरे लोगों को अब मत रोक। Egypt is ruling the world. मिस्र पूरे दुनिया का राज्य था। And his shepherd is going to tell him to go. Tell his people to go. और एक भेड़ बकरी चराने वाला जाकर उसके सामने बोलने वाला है प्रभु के लोगों को जाने दे। I am nobody, Lord. प्रभु मैं कुछ I can't speak also. मैं तो हकलाता बोल नहीं पाता। I have stopped giving lectures and now I begin to stammer. अब तो मैं भाषण देना भी बंद कर चुका हूँ। इतने सालों में मेरी जुबान लड़खड़ा। Those days have gone when I commanded and the whole troop stood up. एक समय था जब मैं सेना के सामने खड़े होकर ललकारता था और वे एक आवाज में खड़ी। Those days have gone when I used to go for war and bring some people in. प्रभु वो दिन चले गए जब मैं युद्ध में जाता था और बड़ी जीत जीतता था। Now I'm retired. अब इतने सालों से सेवा निवृत्त हो गया। God, I can't do this. प्रभु अब मैं ये नहीं करता। You are the man, Moses. मूसा खड़े हो, तू ही है। You will become God for him. तू फिरौन के लिए परमेश्वर ठहरेगा। And Aaron will become my voice. और हारून तेरा शब्द ठहरेगा। God has placed you for a purpose. परमेश्वर ने आपको रखा है एक उद्देश्य के लिए। Amen. आमीन। And they are waiting for you to be manifest. इतना इंतजार करके रुके हैं कि कब तू प्रकट होगा। And you know the story. और आप कहानी जानते हैं। Last thing which Moses said to Pharaoh. आखिरी बार जब फिरौन से मूसा ने बोला, You will not see my face anymore. ठीक है, आज के बाद से तू मेरा चेहरा नहीं देखेगा। And with anger he turned and went away. और मूसा क्रोध से मुड़कर फिरौन के महल से निकल गया। Deliverance came to Israel. और उसी रात छुटकारा इस्राएलियों के लिए आया। Hallelujah. Hallelujah. You say, who am I? आप कहते हैं अपने बारे में, God is saying, परमेश्वर बोल रहा I am है, seeking for a man मैं एक आदमी ढूंढ रहा who हूँ will stand between the gap. जो उस खाली जगह में खड़े हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. You are the person to stand there. आप ही वो हैं जो उस बीच में खड़े। We have lived a selfish life. हमने स्वार्थी का जीवन जिया है। Now we have to live for others. अब हमें दूसरों के लिए जीना है। Hallelujah. Hallelujah. Do something good for others. दूसरों के लिए कुछ भला करना Bring है। healing to people. दूसरों के जीवन में चंगाई लाना है। Become eyes to the blind. किसी अंधे की आंख बनना है। Amen. हालेलुया। Become father to the fatherless. पिताहीन के लिए पिता ठहरना है। To the widow become somebody. विधवा के लिए सहायता बन जाएं। Hallelujah. हालेलुया। We have to live what God has wanted us to live for. हमें उसके लिए जीना है जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं। Amen. आमेन। Listen. सुनिए, You read of Samson. आप शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं, Read of Gideon. गिदोन के बारे में, Read of David. दाऊद के विषय में पढ़िए। He appears when Israel is challenged by Goliath. वैसे समय में प्रकट हुआ जब पूरा इज़राइल एक दुश्मन की चुनौती के सामने खड़ा था। David comes up दाऊद प्रकट हुआ with a stone and a sling. हाथ में गोफन और पत्थर के साथ। Who is this uncircumcised Philistine to और challenge the armies of the इस्राएलियों living God? कहने लगा, ये खतना रहित पलिश्ती है कौन जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है। And Goliath, when he saw David, he got irritated. और उस ऊंचे पूरे गोलियत ने जब दाऊद उस लड़के को आते देखा तो वो चिढ़ गया। Everybody's watching. दूर से सब लोग उस दृश्य को देख रहे थे। He's swinging his sling. दाऊद अपनी गोफन घुमाते घुमाते आ रहा। He says, am I a dog? और गोलियत पूछने लगा, क्या मैं एक कुत्ता हूं जो तू ऐसे आ रहा है? I never said it, you only said it. दाऊद कह सकता था, मैंने तो नहीं कहा, तू खुद कह रहा है। You come to me with shield and stave and with all kinds of armor. तू तो लड़ने के लिए ढाल रखा है, भाले तलवार लेकर आया है।
I come to you in the name of the Lord God Jehovah. लेकिन मैं तो एक नाम यहोवा परमेश्वर के नाम से आया हूँ। Hallelujah. He made the difference. और दाऊद का प्रकट होना उस पूरे चित्र में परिवर्तन ले आया। Elijah made the difference. एलिया जब प्रकट हुआ अंतर आ गया। I stand in the presence of the Almighty. कहने लगा मैं वो हूँ जो सर्वशक्तिमान की हुजूरी। Elisha made the difference. एलीशा प्रकट हुआ अंतर। John the Baptist made the difference. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकट हुआ और Jesus made the difference. यीशु मसीह प्रकट हुआ और अंतर ले आया। Amen. आमेन। Stand in the gap. खाली जगह में कोई खड़े हो जाएं, Otherwise people will die. अन्यथा लोग बाहर मर रहे हैं। Amen. We don't pray for them to die. हम उनके मौत के लिए प्रार्थना दुआ नहीं करते। We pray that Bilaspur will be saved. हम उनको जीवन पाने के लिए कि बिलासपुर उद्धार पाए Hallelujah. प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We pray, God, हमें प्रार्थना करते परमेश्वर I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर I सकता। stand in between the gap. उस खाली जगह में खड़े हो जाएं। God says, परमेश्वर कहता है I sought for a man, I found none. मैंने एक आदमी को ढूंढा मुझे कोई मिला नहीं, So I destroyed them. तब मैंने उन्हें नाश कर दिया। Somebody should come in between. कोई आए इनके बीच और रोके। God wanted to destroy Israel. Moses stood and said, destroy me. परमेश्वर उन इस्राएलियों को नाश करना चाहता था। मूसा बीच में आ गया और कहा प्रभु रुक, Wipe my name. मेरे नाम को मिटा दे, Not these people. इन लोगों को मत मिटा। Joel writing says, योएल नबी लिखते बोलता है 2nd chapter, दूसरे अध्याय में it says, blow the trumpet in Zion, 15th verse. 15 आयत में बोलता है Sanctify a fast, call an assembly, solemn assembly. सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather लोगों the को children. इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो। Those that suck the breast and the bridegroom go forth of his chamber and the bride from the closet. बच्चों और दुधियों को भी इकट्ठा करो, दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। Bring them all. इन सब को बुलाओ। And what the priest have to do? और याजकों को क्या करना है? 17th verse. 17 आयत में लिखा है, Let the priests and the ministers of the Lord weep between the porch and the altar. याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, Spare your people, O God. हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा। Give not then heritage to reproach, और अपने निज भाग की नाम धराई न होने that the heathen should rule over them. न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। Wherefore should they say among the people, where is their God? जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? You know, when we intercede, something will happen. जब हम मध्यस्थता करते हैं तब कुछ होता है। When you have time, read this whole chapter. आपके पास जब समय हो तो इस पूरे अध्याय को पढ़ें। It says there, वहाँ लिखा है, then will I hear from heaven. तब परमेश्वर स्वर्ग से मैं उनकी प्रार्थना सुन लूंगा, I will heal the land. मैं उनके देश को चंगा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। What is the meaning of talking of Christ who did healing in the time past? बीते समय में यीशु मसीह ने जो चमत्कार किया है उसकी चर्चा करने से मात्र क्या लाभ, If it is not happening today. यदि आज के दिन वो घटनाएं यदि नहीं हो रही हैं? Why? क्यों? Because we have not stood there. क्योंकि हम उस बीच में खड़े नहीं हुए। Priests of God. परमेश्वर के याजक। You say, अच्छा तो पास्टर लोग के लिए है ये तो। आप कहेंगे पास्टर लोगों के लिए है। 1 Peter, पहला पत्रस 2nd chapter, दूसरा अध्याय 9th verse says, 9 आयत कहती है, You are a chosen generation, royal priesthood, holy nation. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। Amen. आमीन। Who? कौन? You. तुम। Amen. आमीन। Next time now you write in front of your name Purohit. आप अगली बार अपने नाम के सामने पुरोहित लिख सकते हैं। कौन जात का पुरोहित है? कौन जात के? पुरोहित जात। You are a chosen generation, तुम एक चुना हुआ वंश, royal priesthood, राजपदधारी याजक। पद को धारी करके बैठे हैं।
पद को धारण करके बैठे, Do something, Baba. उसके बारे में कुछ करें। Amen. If you want to know the definition, यदि आप इसकी परिभाषा जानना चाहते हैं, Hebrews 5th chapter 1st verse says, इब्रानियों 5:1 में लिखा है, priest is taken from the man, याजक मनुष्यों में से लिया जाता है for man, मनुष्यों के लिए, that he might give sacrifices to God through उन बातों के लिए कि वो परमेश्वर के लिए मनुष्य की ओर से बलि चढ़ाए। Amen. आमेन। Because he himself is sinful, क्योंकि वो खुद याजक भी पापमय है, he would understand those who sin, वो दूसरे जो पापी उसके पास आते हैं उनका दुख वो समझ सकता so है, that he can be merciful to them. ताकि वो भी उनके प्रति दयालु हो सके। Hallelujah. हालेलुया। You know, when somebody falls, you are so proud. जब कोई पाप में गिरता है, आप क्या घमंड में आते हैं? When you fall, जब आप गिरते हैं, you want somebody to lift you up. आप कोई चाहते कि कोई आपको उठाए, Go and lift somebody up. जाकर किसी और को उठाएं। Next time he will not fall. अगली बार हम नहीं गिरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Help somebody. किसी की मदद करें, Glory to God. प्रभु को महिमा मिले, Because you are there at such a time as this. क्योंकि आप ऐसे ही कठिन समय के लिए रखे गए हैं। You are a royal priesthood. आप एक राज Holy फलदायी nation. याजकों का समाज, एक चुना हुआ वंश। For what? किसके लिए? That you might show forth the praises of God, ताकि आप परमेश्वर की स्तुति को, उसके ज्योति को प्रकट करें, who has called us into his marvelous light. जिसने अपने अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया है। Not show off, दिखावा करने के लिए नहीं, show God. परमेश्वर को प्रस्तुत करने के लिए। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, all revivals came सारी आत्मिक जागृतियां आई, not because of very good preachers, बहुत अच्छे प्रचारकों के कारण नहीं, but because of people who prayed. परंतु प्रार्थना करने वाले लोगों के कारण, Intercessory prayer. मध्यस्थता की प्रार्थना करने के कारण। Everyone can do that. हर व्यक्ति प्रार्थना करने का काम कर सकता है। Amen. आमेन। This ministry is always fruitful. ये प्रार्थना की जो सेवकाई हमेशा फलदायक, Nobody falls because there is no pride can come in because you are not in public. और कोई भी घमंड के कारण गिरता नहीं, क्योंकि आपकी प्रार्थना गुप्त है, जनता के सामने नहीं है। The challenge is this: चुनौती लेकिन ये है, become like Abraham, अब्राहम के समान बन जाए, become like Moses, मूसा के समान बन become जाए, like Nehemiah, नहम्या के समान बन जाए, become like Jesus, यीशु के समान बन who जाए, prayed for others. जिन्होंने अपने दुश्मनों के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना किया। Amen. आमेन। You know that healing will come to us आप जानते हैं हमारे जीवन में चंगाई आएगी when we forgive and pray for others. जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। Amen. आमेन। Amen. आमेन। So revivals did not come आत्मिक जागृतियां इसलिए नहीं आई because there was a big crowd, क्योंकि वहां पर बड़ी भीड़ थी, one and twos एक या दो लोग इकट्ठे हुए began to pray. और प्रार्थना करने, Few more came, कुछ और जुड़ गए, few more came, कुछ और आ गए, and this prayer meeting became so big. और ये प्रार्थना सभा इतनी बड़ी हो गई। Revivals were marked with repentance. आत्मिक जागृतियों का एक चिन्ह है पश्चाताप। Amen. आमेन। Revivals are marked with reconciliation. और बेदारी, आत्मिक बेदारी में आपसी मेल है। They sold everything, became common. लोग सब अपना वस्तु बेचकर Amen. आपस में सब साझे की थी। Revival came. When revival comes, जब आत्मिक जागृति आती है, there was a lot of prayer and a lot of worship and singing. वहाँ बहुत प्रार्थना, वहाँ गीत और आराधना हुई। When revival came, जब आत्मिक जागृति आई, there was love for the word of God, वहाँ पर परमेश्वर के वचन के प्रति प्यार था, love for the house of God, प्रभु के घर के प्रति प्रेम था, love for one another, एक दूसरे के प्रति प्रेम love for था, lost souls. और खोई हुई आत्मा के लिए एक बोझ था। Signs and wonders began to take चिन्ह place. और चमत्कार रोज होते थे। Household salvation came. पूरा का पूरा घराना बचता था। Amen. आमेन। Thank God for some gospel concerts, कुछ गॉस्पेल गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं, but only jumping and coming back is of no meaning. लेकिन गाना गाकर उछल कूद करके वापस लौट जाने में कोई तर्क नहीं है। When you come on your knees, जब आप अपने घुटनों में आते हैं, you touch heaven. आप स्वर्ग को स्पर्श करते हैं। Hallelujah. हालेलुया।
Amen. आमेन। They are waiting. वे God is waiting. परमेश्वर ठहरा हुआ है And the creation is waiting और सृष्टि ठहरी हुई है for you. आपके लिए। That place. वो जगह The priest come between the people. जहाँ पर याजक आकर मनुष्यों और प्रभु के बीच खड़ा होता है, The altar and people. वेदी और लोगों के बीच खड़ा होता And है pray and say, और प्रार्थना पुकार कर बोलता spare है, your people, O God. हे परमेश्वर अपने लोगों पर तरस खा, Spare your people. अपने लोगों को बख्श दे। If all of us will do that, यदि हम सब लोग यही प्रार्थना करें, nothing can stop revival from coming in. कोई भी चीज आत्मिक बेदारी आने से रोक नहीं सकती। Amen. आमेन। From this day, इस समय से लेकर let's begin to pray for others. हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले Now बन for जाएं। just 2 minutes. केवल 2 मिनट के लिए नहीं, If we have aught against somebody, यदि हमारे मन में किसी के लिए भी कुछ हो, put it right. उसे सही कर लें। One night God spoke to my heart. एक रात्रि परमेश्वर ने मेरे हृदय से बोला And I couldn't pray that night. और मैं रात को प्रार्थना नहीं कर सका। I wept. मैं रोया। Not for myself, अपने लिए नहीं, but somebody else. परंतु किसी और के लिए, That they should not be lost. कि प्रभु की वो लोग खोए ना जाएं। Let the Holy Ghost speak to our hearts. पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से बात करे। Amen. Shall we bow heads in prayer? आइए सभी अपने सिरों को झुकाएं। Worship your name. Kura mama si kiri diri basira baba bara baba shanda baba shanda. Something good will happen. Jesus' name. When you begin to pray for others, दूसरों के लिए जब आप प्रार्थना शुरू कर देंगे, अपने आप की तकलीफें भूल कर परमेश्वर से मांगे, खुदा मेरे पापों को क्षमा कर। बड़ा शीर अल्लाह बना बाबा। We pray for those who are here with us and who are elsewhere now. हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो यहाँ हमारे बीच में थे और अब वो कहीं और हैं। Jesus' name. खुराबा मली तेरी बेसी खुदा। As the Holy Ghost is speaking to your heart this morning, यदि पवित्र आत्मा आज सुबह आपके हृदयों से बात कर रहा है, bringing someone to your mind, किसी व्यक्ति को आपके मन में ला रहा है whom you have not forgiven, जिसको आपने माफ नहीं किया है, forgive them. उन्हें माफ कर। Life is short, friends. Life is short. जीवन छोटा है, उन्हें माफ कर। And pray and speak a blessing for them this morning. और आज सुबह उनके लिए एक आशीष की प्रार्थना करें, प्रभु तू उन्हें आशीष दे। When you pray a blessing for them, blessing will come upon और you. जब तू दूसरों के लिए आशीष मांगेगा, आशीष तुझ पर आएगी। बाबा बस ये करे ना बाबा। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण